اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ احد کی پہاڑیوں کے اندر جو بستیاں آباد ہیں، وہاں کے رہنے والوں نے ایک رات کسی عورت کی چیخیں سنی۔ 3-4 دلیر قسم کے آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر تلواریں اور برچیاں اٹھائے سرپٹ دوڑے گئے، لیکن انہیں وہاں کوئی عورت نظر نہ آئی اور چیخیں بھی خاموش ہو گئیں۔ وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ خالد بن ولید نے پوچھا، یہ چیخیں صحرائی لومڑیوں یا کسی بھیڑیے کی بھی ہو سکتی ہیں؟ ابو جریج نے کہا، بھیڑیے اور عورت کی چیخ میں بہت فرق ہے۔ لوگ اسے کسی مظلوم عورت کی چیخیں سمجھے تھے۔ وہ یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کسی عورت کو ڈاکو لے جا رہے ہوں گے یا وہ کسی ظالم خاوند کی بیوی ہوگی اور وہ سفر میں ہوں گے۔ لیکن اگلی رات یہ چیخیں ایک اور بستی کے قریب سنائی دیں۔ وہاں کے چند آدمی بھی ان چیخوں کے تعاقب میں گئے، لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری تیسری رات کچھ دیر کے لیے یہ نسوانی چیخیں سنائی دیتی اور رات کی خاموشی میں تحلیل ہو جاتی۔ پھر ان پہاڑیوں کے اندر رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ اب چیخوں کے ساتھ عورت کی پکار بھی سنائی دیتی ہے، جرید، جرید کہاں ہو؟ آ جاؤ۔ وہاں کے لوگ جرید نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتے تھے۔ ان کے بزرگوں نے کہا کہ یہ کسی مرے ہوئے آدمی کی بدرو ہے جو عورت کے روپ میں چیخ چلا رہے ہیں۔ ابو جریج کے بولنے کے انداز میں ایسا تاثر تھا جو ہر کسی کو متاثر کر دیا کرتا، لیکن خالد کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا جس سے پتہ چلتا کہ وہ قبیلہ غطفان کے اس بوڑھے کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ ابو جریج نے کہا، لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا جہاں یہ آوازیں عموماً سنائی دیا کرتی تھی۔ ایک روز یوں ہوا کہ 2 گھڑ سوار جو بڑے لمبے سفر پر تھے، ایک بستی میں گھوڑے سرپٹ دوڑاتے پہنچے۔ گھوڑوں کا پسینہ یوں پھوٹ رہا تھا جیسے وہ پانی میں سے گزر کر آئے ہوں۔ ہانپتے کانپتے سواروں پر خوف طاری تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے کسی عورت کی پکار سنی، جرید ٹھہر جاؤ، جرید ٹھہر جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ ان گھڑ سواروں نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک عورت کھڑی ان گھڑ سواروں کو پکار رہی تھی۔ وہ تھی تو دور لیکن جوان لگتی تھی۔ وہ پہاڑی سے اترنے لگی تو دونوں گھڑ سواروں نے ڈر کر ایڑ لگا دی۔ سامنے والی چٹان گھومتی تھی۔ گھڑ سوار اس کے مطابق وادی میں گھوم گئے۔ انہیں 3-4 مزید موڑ مڑنے پڑے۔ گھبراہٹ میں وہ راستے سے بھٹک گئے۔ وہ ایک اور موڑ مڑے تو ان کے سامنے 30-40 قدم دور ایک جوان عورت کھڑی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ نیم برہنہ تھی۔ اس کا چہرہ لاش کی مانند سفید تھا۔ گھڑ سواروں نے گھوڑے روک لیے۔ عورت نے دونوں بازو ان کی طرف پھیلا کر اور آگے کو دوڑتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کے انتظار میں بہت دنوں سے کھڑی ہوں۔ دونوں گھڑ سواروں نے وہیں سے گھوڑے موڑے اور ایڑ لگا دی۔ بوڑھا جریج بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ خالد کی ران پر رکھا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ دیر کے لیے رک جائیں؟ پھر نہ جانے تم کب ملو۔ تمہارا والد ولید بڑا زبردست آدمی تھا۔ تم میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئے تھے۔ میں تمہاری خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں۔ روکو گھوڑے کو اور اتر آؤ۔ یہ قافلہ وہیں رک گیا۔ ابو جریج نے بھنا ہوا گوشت خالد کے آگے رکھتے ہوئے کہا، وہ کسی مرے ہوئے آدمی یا عورت کی بدرو ہی ہو سکتی تھی۔ کھاؤ ولید کے بیٹے۔ پھر ایک خوفناک واقعہ ہو گیا۔ ایک بستی میں ایک اجنبی اس حالت میں آن گرا کہ اس کے چہرے پر لمبی لمبی خراشیں تھیں جن سے خون بہ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر بھی خراشیں تھیں۔ وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے زخم دھوئے اور اس کے منہ میں پانی ڈالا۔ وہ جب ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ وہ 2 چٹانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ایک چٹان کے اوپر سے ایک عورت چیختی چلاتی اتنی تیزی سے اتری جتنی تیزی سے کوئی عورت نہیں اتر سکتی تھی۔ یہ آدمی اس طرح رک گیا جیسے دہشت زدگی نے اس کے جسم کی قوت سلب کر لی ہو۔ وہ عورت اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ رک نہ سکی۔ وہ اس آدمی سے ٹکرائی اور چیخ نما آواز میں بولی، تم آ گئے جرید، میں جانتی تھی تم زندہ ہو، آؤ چلیں۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ جرید نہیں، لیکن وہ عورت اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی رہی اور کہتی رہی، تم جرید ہو، تم ہی جرید ہو۔ اس شخص نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش میں اسے دھکا دیا۔ وہ گر پڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آدمی اسے کوئی پاگل عورت سمجھ کر وہیں کھڑا رہا۔ وہ اس طرح اس کی طرف آئی کہ اس کے دانت بھیڑیوں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے اور اس نے ہاتھ اس طرح آگے کر رکھے تھے کہ اس کی انگلیاں درندوں کے پنجوں کی طرح ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ وہ آدمی ڈر کر الٹے قدم پیچھے ہٹا اور ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر پیٹھ کے بل گرا۔ یہ عورت اس طرح اس پر گری اور پنجے اس کے چہرے پر گاڑ دیے جیسے بھیڑیا اپنے شکار کو پنجوں میں دبوچ لیتا ہے۔ اس نے اس آدمی کا چہرہ نوچ ڈالا۔ اس نے اس عورت کو دھکا دے کر پرے کیا اور اس کے نیچے سے نکل آیا۔
लेकिन उस औरत ने अपने नाखून उस शख्स के पहलुओं में उतार दिए और उसके कपड़े भी फाड़ डाले और खाल भी बुरी तरह जख्मी कर दी। उस जख्मी ने बताया कि उस औरत की आंखों और मुंह से शोले से निकलते हुए महसूस होते थे। वो उसे इंसानों के रूप में आया हुआ कोई दरिंदा समझा। उस आदमी के पास खंजर था, लेकिन उसके होश ऐसे गुम हुए कि वो खंजर निकालना भूल गया। इत्तेफाक से उस आदमी के हाथ में उस औरत के बाल आ गए। उसने बालों को मुट्ठी में लेकर जोर से झटका दिया। वो औरत चट्टान पर गिरी। ये आदमी भाग उठा। उसे अपने पीछे उस औरत की चीखें सुनाई देती रहीं। उसे बिल्कुल याद नहीं था वो उस बस्ती तक किस तरह पहुंचा है। वो उन खराशों की वजह से बेहोश नहीं हुआ था। उस पर दहशत सवार थी। फिर दो मुसाफिरों ने बताया कि उन्होंने रास्ते में एक आदमी की लाश पड़ी देखी है, जिसे किसी दरिंदे ने चीर फाड़ कर हलाक किया होगा। उन्होंने बताया कि उसके कपड़े फटे हुए थे और तमाम जिस्म पर खराशें थीं। उस जगह के करीब जिस जगह उस औरत की मौजूदगी बताई जा सकती थी, छोटी सी एक बस्ती थी। वहाँ के लोगों ने नकल मकानी का इरादा कर लिया, लेकिन यहूदी जादूगर लैस बिन मोशान पहुंच गया। उसे किसी तरह पता चल गया था कि एक औरत उस इलाके में जरीद जरीद पुकारती और चीखती चिल्लाती रहती है, और जो आदमी उसके हाथ आ जाए उसे चीर फाड़ देती है। अबू जुरैज ने खालिद को बाकी कहानी यूं सुनाई। उसे बदरूहों के इल्म के साथ गहरी दिलचस्पी थी और वो लैस बिन मोशान को भी जानता था। जब उसे पता चला कि यहूदी जादूगर वहां पहुंच गया है, तो वो भी घोड़े पर सवार हुआ और वहां जा पहुंचा। वो उस बस्ती में जा पहुंचा जहां लैस बिन मोशान आकर ठहरा था। बूढ़े लैस बिन मोशान ने उठकर बाजू फैलाते हुए कहा, अबू जुरैज, तुम यहाँ कैसे आ गए? अबू जुरैज ने उससे बगलगीर होते हुए कहा, मैं ये सुनकर आया हूँ कि तुम उस बदरूह पर काबू पाने के लिए आए हो। क्या मैंने ठीक सुना है कि उस बदरूह ने या वो जो कुछ भी है 2-3 आदमियों को चीर फाड़ दिया है? लैस बिन मोशान ने ऐसी आवाज में कहा जो मलाल और परेशानी से दबी हुई थी। उसने कहा, वो बदरूह नहीं मेरे भाई, वो खुदाए यहूदा की सच्ची नामलेवा एक जवान औरत है। उसने अपनी जवानी, अपने हुस्न और अपनी जिंदगी यहूदियत के नाम पर वक्फ कर रखी थी। उसका नाम युहावा है। मैंने उसे मक्का में 2-4 मर्तबा देखा था। अबू जुरैज ने कहा, उसके कुछ झूठे सच्चे किस्से भी सुने थे। ये भी सुना था कि उसने कुरैश के एक आदमी जरीद बिन मुसय्यब को तुम्हारे पास लाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए तैयार किया था। फिर मैंने ये भी सुना था कि तुम और युहावा मुसलमानों के महासरे से निकल गए थे और जरीद पीछे रह गया था। अगर युहावा जिंदा है और वो बदरूह नहीं, तो वो इस हालत तक किस तरह पहुंची है? लैस बिन मोशान ने कहा, उसने अपना सब कुछ खुदाए यहूदा के नाम पर कुर्बान कर रखा था, लेकिन वो आखिर इंसान थी, जवान थी। वो जज्बात की कुर्बानी न दे सकी। उसने जरीद की मोहब्बत को अपनी रूह में उतार लिया था। जरीद पर जितना असर मेरे खास अमल का था, उतना ही युहावा की वालेहाना मोहब्बत का। अबू जुरैज ने कहा, मैं समझ गया। उसे जरीद बिन मुसय्यब की मौत ने पागल कर दिया है। क्या तुम्हारा अमल और जादू उस औरत पर नहीं चल सकता? लैस बिन मोशान ने लंबी आह भरी और बेनूर आंखों से अबू जुरैज को टिकटिकी बांध कर देखा और कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मेरा अमल उस पर क्या असर करता? वो मुझे भी चीर फाड़ने को मुझ पर टूट पड़ती थी। मेरा अमल उस सूरत में काम करता कि मैं उसकी आंखों में आंखें डाल सकता और मेरा हाथ थोड़ी देर के लिए उसके माथे पर रहता। अबू जुरैज ने कहा, जहाँ तक मैं इस इल्म को समझता हूँ, वो पहले ही पागल हो चुकी थी और तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी। लैस बिन मोशान ने कहा, और उसे मुझसे दुश्मनी ये थी कि मैं जरीद को मुसलमानों के रहमो करम पर छोड़ आया था। मैं उसे अपने साथ ला सकता था, लेकिन वो इस हद तक मेरे तिलिस्माती इल्म के ज़रिए असर आ चुका था कि हम उसे जबरदस्ती लाते तो वो शायद मुझे या युहावा को कत्ल कर देता। मैंने उसके जहन में दरिंदगी का ऐसा तासुर पैदा कर दिया था कि वो कत्ल गारत के सिवा और कुछ नहीं सोच सकता था। अगर मैं एक दरख्त की तरफ ये इशारा करके कहता कि ये है मोहम्मद, तो वो तलवार उस दरख्त के तने में उतार देता। मुझे ये तवक्को भी थी कि ये पीछे रह गया तो हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाए और उसे कत्ल कर दे, लेकिन वो खुद कत्ल हो गया। अबू जुरैज ने पूछा, क्या तुम अब युहावा पर काबू पा सकोगे? लैस बिन मोशान ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं उसे अपने असर में ले आऊंगा। अबू जुरैज ने पूछा, क्या तुम मुझे इस काम में शरीक कर सकोगे? मैं कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ। लैस बिन मोशान बोला, अगर बुढ़ापा तुम्हें चलने दे तो चलो, मैं थोड़ी देर तक रवाना होने वाला हूँ। यहाँ के कुछ आदमी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए हैं। बूढ़े अबू जुरैज ने अपने पास बैठे हुए खालिद बिन वलीद के कंधे पर हाथ रखकर जज्बाती लहजे में कहा, और फिर खालिद बिन वलीद, हम दोनों बूढ़े ऊंटों पर सवार उस पहाड़ी इलाके में पहुंचे जहां के मुताल्लिक बताया गया था कि एक औरत को देखा गया है। हम तंग सी एक वादी में दाखिल हो गए।
हमारे पीछे 10-12 घुड़सवार और 3-4 शुतर सवार थे। वादी में दाखिल हुए तो उन सब ने कमानों में तीर डाल लिए। वादी आगे जाकर खुल गई। हम दाएं को घूमे तो हमें कई गिद्ध नजर आए जो किसी मुर्दार को खा रहे थे। एक सहराई लोमड़ी गिद्धों में से दौड़ती हुई निकली। मैंने देखा उसके मुंह में एक इंसानी बाजू था और लोमड़ियां भागी और गिद्ध उड़ गए। वहाँ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। सर अलग पड़ा था, उसके बाल लंबे इधर उधर बिखरे हुए थे, कुछ खोपड़ी के साथ थे। आधे चेहरे पर अभी खाल मौजूद थी। वो युहावा थी। लैस बिन मोशान कुछ देर उसकी बिखरी हुई हड्डियों को और अध खाए चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसकी दूध जैसी दाढ़ी में जज्ब हो गए। हम वहां से आ गए। खालिद बिन वलीद ने कहा, लैस बिन मोशान और युहावा ने जरीद बिन मुसय्यब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए तैयार किया था। जरीद बिन मुसय्यब मुसलमानों के हाथों कत्ल हुआ और युहावा का अंजाम तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम समझे नहीं हो अबू जुरैज? बूढ़े अबू जुरैज ने जवाब दिया, हाँ, लैस बिन मोशान के जादू से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू ज्यादा तेज और ताकतवर है। लोग ठीक कहते हैं कि उनके हाथ में जादू है। उस जादू का ही करिश्मा है कि उसके मजहब को लोग मानते ही जा रहे हैं। जरीद को कत्ल होना ही था। खालिद ने कहा, मेरे बुजुर्ग दोस्त, उस बदरूह के किस्से मदीना में भी पहुंचे होंगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं डरा होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों ने तस्लीम ही नहीं किया होगा कि ये जिन भूत या बदरूह है। अबू जुरैज ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों को डरने की क्या जरूरत है? उसके जादू ने मदीना के गिर्द हिसार खींचा हुआ है। उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। वो उहुद की लड़ाई में जख्मी हुआ और जिंदा रहा। तुम्हारा और हमारा इतना ज्यादा लश्कर मदीना की ईंट से ईंट बजाने गया तो ऐसी आंधी आई कि हमारा लश्कर तितर बितर होकर भागा। मैदान जंग में भी उनके सामने जो भी गया उसका दिमाग जवाब दे गया। क्या तुम जानते हो खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की एक और कोशिश नाकाम हो चुकी है? खालिद ने कहा, सुना था, लेकिन पूरी बात का इल्म नहीं। अबू जुरैज ने कहा, यह खैबर का वाकया है। मुसलमानों ने खैबर के यहूदियों पर चढ़ाई की तो यहूदी एक दिन भी मुकाबले में जम न सके। खालिद ने कहा, फरेबकार कौम मैदान में नहीं लड़ती, यहूदी पीठ पर वार करते हैं। अबू जुरैज बोला, और वो उन्होंने खैबर में किया। यहूदियों ने मुकाबला तो किया था, लेकिन उन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ पहले ही तारी हो गया था। मैंने सुना था कि जब मुसलमान खैबर के मकाम पर पहुंचे तो यहूदी मुकाबले के लिए निकल आए। उनमें से बाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे। किसी ने बुलंद आवाज से कहा कि मोहम्मद भी आया है। फिर किसी और ने चिल्लाकर कहा, मोहम्मद भी आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदी लड़े तो सही, लेकिन उन पर मोहम्मद अलैहिस्सलाम का खौफ ऐसा सवार हुआ कि उन्होंने हथियार डाल दिए। यहूदियों ने शिकस्त खाई तो उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का इजहार करना शुरू कर दिया और ऐसे मुजाहरे किए जिनसे पता चलता था कि मुसलमानों की मोहब्बत से यहूदियों के दिल लबरेज हैं। उन्हीं दिनों जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में ही थे, एक यहूदन ने आप अलैहिस्सलाम को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। उसने अकीदतमंदी का इजहार ऐसे जज्बाती अंदाज में किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मायूस करना मुनासिब न समझा। आप अलैहिस्सलाम उसके घर चले गए। आप अलैहिस्सलाम के साथ बशर बिन अल-बारा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। यहूदन ज़ैनब बिन्त अल-हारिस ने, जो सल्लाम बिन शकम की बीवी थी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में आंखें बिछाईं और आप अलैहिस्सलाम को खाना पेश किया। उसने सालिम दुम्बा भूना था। उसने आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपको दुम्बे का कौन सा हिस्सा पसंद है? आप अलैहिस्सलाम ने दस्ती पसंद फरमाई। यहूदन दुम्बे की दस्ती काट लाई और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बशर रज़ियल्लाहु अन्हु के आगे रख दी। बशर बिन अल-बारा ने एक बोटी काट कर मुंह में डाल ली और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोटी मुंह में डाली मगर उगल दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मत खाना बशर, इस गोश्त में जहर मिला हुआ है। बशर बिन अल-बारा रज़ियल्लाहु अन्हु बोटी चबा रहे थे। उन्होंने उगल तो दी, लेकिन जहर लुआबे दहन के साथ हलक से उतर चुका था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ यहूदन, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि तूने इस गोश्त में जहर मिलाया है? यहूदन इनकार नहीं कर सकती थी। उसके जुर्म का सबूत सामने आ गया था। बशर रज़ियल्लाहु अन्हु हलक पर हाथ रख कर उठे और चकरा कर गिर पड़े। जहर इतना तेज था कि उसने बशर रज़ियल्लाहु अन्हु को फिर उठने न दिया। वो जहर की तलखी से तड़पे और फौत हो गए। यहूदन ने बड़ी दलेरी से एतराफ किया, ऐ मोहम्मद, खुदाई यहूदा की कसम, ये मेरा फर्ज था जो मैंने अदा किया।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदन और उसके खावंद के कत्ल का हुक्म फरमाया और खैबर के यहूदियों के साथ आप अलैहिस्सलाम ने जो मुशफिकाना रवैया इख्तियार किया था वो उनकी ज़हनियत के मुताबिक बदल दिया। इब्ने इसहाक लिखते हैं, मरवान बिन उस्मान ने मुझे बताया था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मरज में मुब्तला थे। आप अलैहिस्सलाम ने वफात से 2-3 रोज पहले उम्मे बशर अल-बारा को जब वो आप अलैहिस्सलाम के पास बैठी हुई थी फरमाया, उम्मे बशर, मैं आज भी अपने जिस्म में उस जहर का असर महसूस कर रहा हूँ जो उस यहूदन ने गोश्त में मिलाया था। मैंने गोश्त चबाया नहीं, उगल दिया था, मगर जहर का असर आज तक मौजूद है। खालिद बिन वलीद ने कहा, मोहम्मद को कोई कत्ल नहीं कर सकता। अबू जुरैज ने कहा, आखिर कब तक? उसका जादू कब तक चलेगा? उसे एक ना एक दिन कत्ल होना है खालिद। अबू जुरैज ने खालिद के करीब होते हुए पूछा, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की कोई तरकीब कभी सोची है? खालिद ने जवाब दिया, कई बार। जिस रोज मेरे कबीले ने बदर के मैदान में शिकस्त खाई थी उस रोज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों से कत्ल करने की तरकीब सोच रहा हूँ, लेकिन मेरी तरकीब कारगर नहीं हुई। अबू जुरैज ने कहा, क्या वो तरकीब मुझे बताओगे? खालिद ने जवाब दिया, क्यों नहीं, बड़ी आसान तरकीब है। ये है खुले मैदान में आमने सामने की लड़ाई, लेकिन मैं एक लश्कर के मुकाबले में अकेला नहीं लड़ सकता। हम 3 लड़ाइयाँ हार चुके हैं। अबू जुरैज ने कहा लगाकर कहा, खुदा की कसम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वलीद का बेटा बेवकूफ हो सकता है। मैं यहूदियों जैसी तरकीब की बात कर रहा हूँ, मैं धोखे और फरेब की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम आमने सामने की लड़ाई में नहीं मार सकते। खालिद ने कहा, और तुम उसे फरेबकारी से नहीं मार सकते। फरेब कभी कामयाब नहीं हुआ। बूढ़ा अबू जुरैज खालिद की तरफ झुका और उसके सीने पर उंगली रख कर बोला, किसी और का फरेब नाकाम हो सकता है, यहूदियों का फरेब नाकाम नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि फरेबकारी यहूदियों के मजहब में शामिल है। मैं लैस बिन मोशान का दोस्त हूँ, कभी उसकी बातें सुनो। वो दानिशमंद है, उसकी जबान में जादू है, वो तुम्हें जबान से मशहूर कर देगा। वो कहता है कि साल लग जाएंगे, सदियां गुजर जाएंगी, आखिर फतह यहूदियों की होगी। दुनिया में कामयाब होगा तो सिर्फ फरेब कामयाब होगा। मुसलमान अभी तादाद में थोड़े हैं, इसलिए इनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद है। अगर इनकी तादाद बढ़ गई तो यहूदी ऐसे तरीकों से इनमें तफरका डालेंगे कि मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे और समझ न सकेंगे कि ये यहूदियों की कारस्तानी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें यकजान रखने के लिए कब तक जिंदा रहेगा? खालिद उठ खड़ा हुआ, अबू जुरैज भी उठा। खालिद ने दोनों हाथ आगे किए, अबू जुरैज ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। मुसाफा करके खालिद अपने घोड़े पर सवार हो गया। अबू जुरैज ने पूछा, तुमने ये तो बताया नहीं कि कहाँ जा रहे हो? खालिद बिन वलीद ने कहा, मदीने। अबू जुरैज ने हैरत से पूछा, मदीने? वहाँ क्या करने जा रहे हो? अपने दुश्मन के पास? खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू देखने जा रहा हूँ। ये कहकर उसने घोड़े को एड़ लगा दी। उसने कुछ दूर जाकर पीछे देखा, उसे अबू जुरैज का काफिला नजर न आया। खालिद नशेबी जगह से निकलकर दूर चला गया था। इस्लामिक शोर स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें।